بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈکشن فیکٹر اینڈ اینگل فیکٹر کیا ہے, آج میں اس پر بات کرتا ہوں. پہلے میں ریڈکشن فیکٹر پر بات کرتا ہوں. ریڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی. ابھی اس کا ڈیفینیشن کیا ہے ریڈکشن فیکٹر کا؟ کیپیسٹی میں ویب سلینگ یا وائر روپ یوز کر رہا ہوں, یا ویب سلینگ کیپیسٹی آف sling decrease by any factor is called reduction factor. اب یہ any factor کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک لوڈ ہے, 2 ٹن کا لوڈ ہے. اس کے ساتھ میں ایک سلنگ لگا لیتا ہوں سیدھا ورٹیکلی, اور یہ سلنگ بھی ہمارے پاس کیا ہے 2 ٹن کا ہے. اس کا جو WL ہے یہ بھی کیا ہے 2 ٹن. ابھی یہی سلنگ اس لوڈ کو آسان طریقے سے مطلب آرام سے اٹھا سکتا ہے, لیکن اگر سیم یہی لوڈ میں لے لو, 2 ٹن کا لوڈ لے لو اور 2 ٹن کا سلنگ لے لو, اور اس لینگ کو اسی طریقے سے یوز کرو. مینس کہ یہی میرے پاس کیا ہے لوڈ ہے, اور میں اس لینگ کیا کر دیتا ہوں, اس کے ساتھ ریپ کر دیتا ہوں اور پھر جا کر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں, تو اس کو ہم بول دیتا ہے چوکر ہیچ بول دیتا ہے. ابھی یہ سلنگ ہمارے پاس کیا ہے 2 ٹن ہے. اگر یہ سلنگ میں نے اس طریقے سے یوز کیا تو ہمارے پاس یہ لوڈ نہیں اٹھا پائے گا. سپوز کہ ہمارے پاس 1 ٹن کا یہ سلنگ ہے. 1 ٹن کا مینس کے 1000 kg. اگر یہ میں اس طریقے سے یوز کرتا ہوں تو اس میں کوئی کیپیسٹی میں کوئی ڈیکریز نہیں آئے گا. اگر میں یہ سلنگ اس طریقے سے یوز کروں تو یہ 1 ٹن سلنگ جو ہے 1000 kg سلنگ کا جو ہے کیپیسٹی والی سلنگ ہے, تو یہ 750 kg ہی اٹھا پائے گا یا 800 kg اٹھا پائے گا. اب یہ 800 اور 750 کا کیا سین ہے, تو جب بھی سلنگ اسی کنڈیشن میں یوز کر دیتا ہے تو مینوفیکچر بول دیتا ہے کہ اس میں 20% ریڈکشن آ جاتا ہے, اس کی کیپیسٹی میں 20% آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم آرامکو کو دیکھیں تو آرامکو بول دیتا ہے کہ 25% ریڈکشن آ جاتا ہے. ابھی کس کی وجہ سے ریڈکشن آیا؟ اسی ایک طریقے سے, مطلب ہماری طریقہ یہاں کچھ الگ تھا اور یہاں کچھ الگ ہے, تو یہ الگ طریقے سے جو اس سلنگ کی کیپیسٹی میں ڈیکریز آیا اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریڈکشن فیکٹر. لیکن فیکٹر یہاں پر کیا ہے چوکر ہیچ ہے. پہلے 1 ٹن سلنگ سیدھا ورٹیکلی ہمارے پاس کتنا 1 ٹن کا ہے تو 1 ٹن لوڈ اٹھا سکتا ہے, لیکن اگر ہم نے اس طریقے سے لگا لیا تو یہ 750 kg یا 800 kg ہی اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پہلا فیکٹر ہو گیا. پہلا فیکٹر کیا ہو گیا؟ چوکر ہیچ. چوکر ہیچ کی وجہ سے سلنگ کی کیپیسٹی میں ڈیکریز آ جاتا ہے اور اس کو ہم کیا بول لیتے ہیں ریڈکشن فیکٹر. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے D/D ریشو. یہ D ہمارے پاس کیا ہے, یہ بڑا D جو ہے, یہ ایگزامپل میں لے لیتا ہوں, ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک بوشیکلز ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے بوشیکل. اس کا جو ڈائی میٹر ہم لے لیتے ہیں وہ بڑا ڈی سے لیتے ہیں. جو ہمارے پاس وائر روپ ہے اس کا ڈائی میٹر میں کنسیڈر کروں گا چھوٹا ڈی سے, مطلب D/D ریشو میں جو بڑا ڈی ہے بوشیکلز کا, چھوٹا ڈی ہے وہ وائر روپ کا. سمپلی اگر کوئی سلنگ کسی چیز کے ساتھ آپ ریپ کر رہے ہو, اس کا ڈائی میٹر ہم بڑا ڈی, جو آپ ریپ کر رہے ہو اس کا ڈائی میٹر ہم چھوٹا ڈی کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس یہ کیا ہے, اگر جس چیز کے ساتھ ہم ریپ کر رہے ہیں اس کا ڈائی میٹر اگر ہمارے پاس 25 ہے, 25 جو بھی ہے, سینٹی میٹر ہے, انچ ہے, واٹ ایور جو بھی یونٹ ہے, اور جو چیز ہم اس کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں اس کا ڈائی میٹر 1 ہے, تو
इस हिसाब से मतलब 20 पाइप डिवाइडेड बाय 1, 20 पाइप रेशो 1, तो इसमें इस वायर रूप में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो डायमीटर है ये हमारे पास क्या है 1, ये डायमीटर हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, और छोटा डी भी हमारे पास क्या हो गया 1, मतलब बोशेकल का डायमीटर हमारे पास भी 1 हो गया और वायर रूप की डायमीटर हमारे पास भी क्या हो गया 1 हो गया। तो अभी 50% रिडक्शन आ जाएगा, मतलब पहले हमारे पास अगर ये 2 टन उठा सकता था, अभी ये 1 टन उठा पाएगा। सेम इसी तरह अगर 1 टन का वायर रूप है हमारे पास क्या है 1 टन का ये वायर रूप है, अगर हमारे पास इस जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, जिसके साथ आप ये रैप कर रहे हो, मिसाल के तौर पर जिस चीज से आप पास कर रहे हो उसका डायमीटर कुछ चीज है, और जो चीज पास कर रहे हो उससे उसका डायमीटर हमारे पास 1 है, तो x मीन 0 रिडक्शन। लेकिन हमारे पास इस बोशेकल का डायमीटर 1 है और इसका भी डायमीटर 1 है, तो इसमें 50% रिडक्शन आएगा, मतलब 1 टन था तो अभी ये 0.5 टन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है गया डी बाई डी रेशो को आप भी देखेंगे क्यों ये कम आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई भी चीज, अगर बड़ा चीज मोटा है थिक है और छोटे चीज के साथ आप क्या कर रहे हो उससे ऐसे मतलब पास कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है बैंड हो जाता है। एक हमारे पास क्या हो जाता है, मिसाल के तौर पर इसमें आउटर और इनर, ये हमारे पास क्या है, इसके साथ आप क्या कर रहे हो ये पास कर देता हूं, तो ये हमारे पास क्या है बाहर की वायर से, और ये हमारे पास क्या है अंदर की। तो बाहर की वायर हमारे पास क्या हो जाती है बैंड हो जाती है, तो सारा की सारा लोड इस पर आ जाएगा, और इनर की जितने भी हमारे पास क्या है वायर है इस पर कोई भी लोड नहीं आएगा, तो इस वजह से इसकी कैपेसिटी में डिक्रीज आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड क्या हो गया डी बाई डी रेशो है। ठीक है, अभी थर्ड जो है हमारे पास क्या है टेम्परेचर है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक वेब स्लैंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक वेब स्लैंग यूज कर रहे हैं लेफ्टिंग में। अभी डिफरेंट टेम्परेचर होती है ना, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम वेब स्लैंग यूज कर रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी 0 होगी, ये कोई भी लोड नहीं उठा सकता है। अगर 1 टन है तो ये 0 टन ही उठा सकते हैं, मतलब कोई भी लोड नहीं उठा सकते। रीजन क्या है, अभी मैं एग्जांपल, ये हमारे पास फैक्टर होगी ना, टेम्परेचर क्या हो गया फैक्टर हो गया, टेम्परेचर की वजह से स्लैंग की कैपेसिटी में क्या हो गया रिडक्शन आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्लैंग है, इसके बीच में क्या होती है मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल इधर हो गया, इधर बहुत सी मॉलिक्यूल है इस स्लैंग में, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो इन दोनों के बीच में ये पास में होते हैं और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हमारे पास जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये खत्म हो जाएगी, और जब ये खत्म हो जाएगी तो इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी कैपेसिटी 0 होगी। तो ये हमारे पास क्या है कुछ फैक्टर है, और इसी फैक्टर की वजह से हमारे पास स्लैंग में क्या आ जाते हैं रिडक्शन आता है, स्लैंग की कैपेसिटी में क्या आ जाती है रिडक्शन आता है। पहला वीडियो में अच्छा मैंने रिडक्शन फैक्टर एक्सप्लेन किया, अभी एंगल फैक्टर क्या है। एंगल फैक्टर के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम ले लेता हूँ और इसी डायग्राम से मैं डेफिनेशन भी निकाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है एक लोड है, यहाँ पर एक स्लैंग लगा होता है और यहाँ पर एक 10 टन का लोड। इस 10 टन लोड के लिए हमारे पास 5 टन का स्लैंग और 5 टन का स्लैंग काफी है। लेकिन हमारे पास यही स्लैंग है और ये हमारे पास एक एंगल पे लगा होता है, तो अभी ये 5 टन का स्लैंग यही 10 टन का लोड नहीं उठा पाएगा। क्यों, रीजन क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास
वर्टिकल फोर्स है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और हमारी स्लैंग इसके बीच में लगा है। ये स्लैंग इसी तरह लगा है ना, यहाँ पर इसके साथ एक एंगल बन जाता है। एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगता है, लेकिन एक फोर्स हमारे पास किस तरफ लग जाता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये लोड हमारे पास क्या ऊपर की जाए, मतलब अगर ये हम ऐसे उठाता है ना तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये इसी तरह भी इस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तो इस स्लैंग पर एक्स्ट्रा टेंशन आएगा और उसको हम बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा टेंशन किसकी वजह से आ जाता है, एंगल फैक्टर की वजह से। तो मींस कि एंगल फैक्टर एक्सर्ट एक्स्ट्रा force, yeah, the tension on sling increase by the angle is called angle factor। हमारे पास एंगल फैक्टर क्या होता है, एंगल फैक्टर मींस कि इसी स्लैंग पर जो टेंशन है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, किसकी वजह से, एंगल की वजह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल फैक्टर। अभी हमारे पास क्या है, 10 टन का लोड है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये डिग्री क्या है 60 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर ऑफ ये जो लोड है इसको डिवाइड करूँगा 2 पर, 5 पाइप आ गया लोड, फिर इस पाइप को क्या करूँगा साइन 60 पर डिवाइड करूँगा। जब मैं साइन 60 पर डिवाइड करूँ तो ये पर हमारे पास क्या जाता है 5.7, यहाँ पर कितना था 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स लेंथ पर 5.7 टन, यहाँ पर भी 5.7 टन। ये जो 0.7 इंक्रीज हुआ ना किस वजह से, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। अगर मैं इसी 10 टन को 2 से डिवाइड करो पाइप, और फिर मैं यहाँ पर एंगल ले लो 45, तो इस पर हमारे पास आ जाता है 7.07। अभी तकरीबन 2.07 एक्स्ट्रा लोड हमारे पास एक ही स्लैंग पर आ जाता है। ये किस वजह से, एंगल की वजह से। और क्यों, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्लैंग इस हॉरिजॉन्टल की तरफ क्लोज हो रही है। फिर हमारे पास अगर यही पाइप डिवाइड करो मैं साइन 30 पर, तो इस स्लैंग पर 10 टन लोड आएगा। यहाँ पर कितना आ जाता था 5 टन, यहाँ पर 5.7। फिर अगर 45 पर 7.07, अगर मैं यहाँ पर एंगल क्या है 30 है, तो ये डबल हो जाएगी। क्यों, जितना भी एंगल कम होगी, मतलब ये हमारे पास क्या है 75 है, लेस टेंशन 60 है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, 45 और ज्यादा हो जाएगी, 30 डबल हो जाएगी। जितने भी एंगल कम होती रहेगी स्लैंग टेंशन इंक्रीज हो जाती है। मींस कि स्लैंग टेंशन is inversely proportional to एंगल। अगर एंगल हमारे पास ज्यादा होगी स्लैंग टेंशन कम होगी। 90 हमारे पास क्या है मैक्सिमम है। अगर 90 है तो मींस सेम टेंशन, जितना भी स्लैंग है, जितना भी हमारे पास 5 टन का स्लैंग है तो 5 टन का लोड ही उठाएगा, कोई भी रिडक्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या आ जाती है, स्लैंग टेंशन इंक्रीज होगी अगर हमारे पास एंगल डिक्रीज होगी, मतलब 90 से 0 की तरफ आ जाएगी। 90 है, फिर 75 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया। 90 से 30 की तरफ आ जाएगी तो इस पर डबल टेंशन आएगी। जितना भी लोड है उतना ही टेंशन आएगा, मतलब 10 टन है तो 10 टन ही आ पाएगा। दिस ऑल अबाउट एंगल फैक्टर एंड स्लैंग रिडक्शन फैक्टर।